Here are some quotes and phrases on earning success with hard work, dedication, and honesty. Success is not given, it is earned through dedication and relentless effort. Dreams turn into reality when hard work and honesty light the way. Focus like a flame, work like a storm, and success will follow. Only those who walk the path of truth and perseverance reach their destination. True success demands hard work, not shortcuts. Dedication turns goals into achievements. Honesty keeps the journey pure. One-pointed focus is the bridge between your dreams and reality, mine too. The fruit of hard work tastes sweeter when grown with honesty and truth. So we should follow honesty, truth. We should be motivated and inspired by all the wonderful, inspiring, motivational stories and books and speeches and podcasts and beautiful things. Choose it on the YouTube. Choose it everywhere you find there is motivation. यश मेहनत आणि समर्पणातून मिळतं, ते सहज मिळत नाही. स्वप्न सत्यात उतरतात जेव्हा सत्य आणि मेहनत यांना साथ देतात. एकाग्रता ठेवा, प्रामाणिकपणे मेहनत करा, यश तुमचंच होईल. सत्य आणि चिकाटीने चालणारेच आपल्या ध्येयापर्यंत पोहोचतात. सोप्या वाटांनी नव्हे, कष्टातून खऱ्या यशाचा मार्ग तयार होतो. संपूर्ण लक्ष आणि प्रामाणिक कष्ट स्वप्नांना प्रत्यक्षात आणतात. एकाग्रता आणि प्रामाणिकपणाच स्वप्नांना सत्यात उतरवतात. कष्टानं मिळवलेलं यश खूप गोड असतं जेव्हा ते प्रामाणिकपणाने मिळवलेलं असतं. सफलता मेहनत और लगन से कमाई जाती है, इसे उपहार में नहीं मिलती. सपने तब हकीकत बनते हैं जब सच्चाई और मेहनत उनका साथ देती है. ध्यान केंद्रित करें, मेहनत करें और सफलता खुद आपके पास आएगी. सच्चाई और समर्पण की राह पर चलने वाले ही मंजिल तक पहुंचते हैं. सच्ची सफलता शॉर्टकट से नहीं, मेहनत से मिलती है. लगन और ईमानदारी लक्ष्य को हकीकत में बदल देती है. एकाग्रता और सच्ची मेहनत ही सपनों को साकार करती है. कड़ी मेहनत का फल सबसे मीठा होता है. Opportunity knocks but once. A long time ago, in an ancient Greek city, there stood a statue called Opportunity. Every bit of it had vanished now, but an epigram describing the statue still exists. The epigram is in the form of a conversation with a traveler. What is your name, O statue? I am called Opportunity. Who made you? The sculptor asked. Why are you on your toes? To show that I stay but a moment. Why do you have wings on your feet? To show how quickly I pass by. But why is your hair so long on your forehead? So that men may seize me when they meet me. Why then is your head so bald behind? To show that once I have passed, I cannot be caught. Opportunity must be seized by the forelock. Once an opportunity has passed, there is no recalling back. This is a story I have referred from the book 100 Great Inspiring Stories by the author G. Francis Xavier.
पैसे गरजा पूर्ण करण्यासाठी असतात, ओळख ठरवण्यासाठी नाहीत. त्याचा शहाणपणाने वापर करा. इतरांच्या आयुष्याशी तुलना करू नका. तुमच्या आनंदावर लक्ष केंद्रित करा. पैसा मिळवण्यासाठी कष्ट करा, पण साधेपणात आनंद शोधा. फाजील गोष्टींवर पैसा वाया घालवून समाधान कधीच मिळत नाही. ते गरजा पूर्ण केल्याने मिळतं. दाखवण्यासाठी नाही, तर आयुष्य जगण्यासाठी कमवा. कष्टाने कमवलेल्या पैशानं समाधान मिळतं, वस्तूंनी नाही. गरजा पूर्ण झाल्या की आयुष्य श्रीमंत वाटतं, इच्छांच्या ओझ्यानं नाही. तुमच्या मर्यादेत राहायला शिका, कारण खरी संपत्ती म्हणजे काळजीमुक्त जगणं. Money is a tool to fulfill your needs, not a measure of your worth, so use it wisely. Stop comparing your life to others. Focus on what truly makes you happy and content. That is very, very important. Work hard to earn money, but harder to find joy in simple things. Wasting money on luxuries won't bring peace. Fulfilling needs will. Earn to live, not to show off. Hard-earned money brings satisfaction, and it's truly a pure satisfaction, not just possessions. Life is rich when your needs are met, not when your desires overflow. Live within your means. True wealth is living without unnecessary work. पैसा ज़रूरतें पूरी करने का साधन है, अपनी पहचान नहीं. इसका सही उपयोग करें. दूसरों की ज़िंदगी से तुलना छोड़ दो, अपनी खुशियों पर ज़्यादा ध्यान दो. पैसा कमाने के लिए मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, लेकिन सादगी में खुशी ढूंढने की कोशिश करो. सादगी में ही खुशी है. आश्चर्यजनक चीज़ों पर पैसा बर्बाद करने से शांति नहीं मिलेगी, ज़रूरतें पूरी करने से मिलती है. सच्ची खुशी मेहनत से कमाए पैसे से आती है, ना कि सिर्फ सामान से. जब ज़रूरतें पूरी होती है तो जीवन धनवान लगता है, न कि जब इच्छाएं बेकाबू हो. अपने साधनों में रहना सीखो. असली धन चिंता मुक्त जीवन है. पैसा पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा. ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत. Live without depression, because Jim Carrey has explained depression in a very, very beautiful way. It is not wrong to earn money, but you have to earn hard-earned money. When you work hard and with full faith in yourself, you can really do it. So work hard in life, with life, and you will be a very, very successful human being. Jim Carrey has said something very nice about depression. You know what he said? He said depression means the body keeps on crying, I need rest, I need rest, I need rest. Please come out of your character of earning money, being a millionaire, a billionaire, being rich. So we have to have a deep rest. We have to come out of our desires and our emotions of feeling good, bad about or comparing others with ourselves. We are great. I am great. We all are. I am I. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Money, money, money always sunny in the rich man's world. All the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world. 3D Mind, I am I. Quotes on ghazals, power of words and importance of good music. A ghazal
is a melody of emotions woven in poetic verses. Ghazals are the heart's voice whispering love and longing. Every couplet of a ghazal carries deep feelings and silent truths. In a ghazal, words dance to the rhythm of the soul. A ghazal is a journey into the depths of the human heart. Through ghazals, poetry and music merge to touch our innermost being. It's a connectedness between the I am as I am I. Words shape thoughts and give wings to emotions. Kind words can heal, inspire, and transform lives. The power of words lies in the ability to spark hope and courage. Words can unlock creativity and awaken the mind. Empower your mind with words of wisdom and truth. What we speak reflects what we believe and feel. Good music is a soothing to the soul and uplifts the spirit. Music speaks when words fall short. Listening to good music brings peace and joy to life. The rhythm of good music aligns to the mind and heart. Music connects us to emotions we cannot express. Good music fills life with harmony and meaning. गझल म्हणजे भावना शब्दांच्या सुरात गुंफलेली कविता. गझल हृदयाची भाषा आहे जी प्रेम आणि ओढ व्यक्त करते. गझलचा प्रत्येक शेर गहिरे भाव आणि सत्य मांडतो. गझलमध्ये शब्द आत्म्याच्या लयीवर नाचतात. गझल म्हणजे माणसाच्या मनाच्या गाभ्यात जाण्याची यात्रा. गझलमध्ये कविता आणि संगीत मनाला स्पर्श करते. शब्द विचारांना आकार देतात आणि भावना व्यक्त करतात. मधुर शब्द जीवनाला प्रेरणा आणि आशा देतात. शब्दात अशी ताकद असते की ती आशा आणि धैर्य निर्माण करू शकते. शब्द सर्जनशीलता उलगडतात आणि मनाला जागृत करतात. खरे आणि ज्ञानयुक्त शब्द मनाला सशक्त करतात. आपण काय बोलतो ते आपल्या विचारांचा आणि भावनांचा आरसा असतो. चांगलं संगीत आत्म्याला शांतता आणि मनाला आनंद देतं. शब्द अपुरे पडले की संगीत बोलतं. चांगलं संगीत ऐकणं जीवनात शांती आणि सुख आणतं. संगीताच्या तालात मन आणि हृदय सुसंगत होतं. संगीत अशा भावना व्यक्त करतं ज्या शब्दात सांगताच येत नाहीत. चांगलं संगीत जीवनाला सूर आणि अर्थ देतं. शब्द विचारों को आकार देते हैं और भावनाओं को पंख देते हैं. मधुर शब्द जीवन को प्रेरणा और आशा देते हैं. शब्दों में वह ताकत है जो उम्मीद और हिम्मत जगा सकती है. शब्द रचनात्मकता को खोलते हैं और मन को जागरूक करते हैं. सच्चे और बुद्धिमान शब्द मन को सशक्त बनाते हैं. हम जो बोलते हैं वही हमारी सोच और भावनाओं को दर्शाता है. अच्छा संगीत आत्मा को शांत और मन को प्रसन्न करता है. जब शब्द कम पड़ जाते हैं संगीत बोलने लगता है. अच्छा संगीत सुनने से जीवन में शांति और आनंद आती है. संगीत का रिदम मन और दिल को संतुलित करता है. संगीत हमें उन भावनाओं से जोड़ता है जिन्हें हम व्यक्त नहीं कर सकते. अच्छा संगीत जीवन को सूर और अर्थ से भरा देता है. गज़ल भावनाओं का संगीत है जो कविता में बहती है. गज़ल दिल की आवाज़ है जो प्रेम और तड़प को बयां करती है. गज़ल का हर शेर गहरे एहसास और सच्चाई से भरा होता है. गज़ल में शब्द आत्मा के संगीत पर नाचते हैं. गज़ल दिल की गहराइयों में उतरने की यात्रा है. गज़ल के माध्यम से कविता और संगीत हमारी आत्मा को छूते हैं, हमारी आत्मा को छूते हैं. उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते. अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते. मजबूर बहुत करता है दिल तो ज़बां को. मजबूर बहुत करता है ये दिल तो ज़बां को. कुछ ऐसी ही हालत है कि हम कुछ नहीं कहते.
कहने को बहुत कुछ था अगर कहने पे आते, कहने को बहुत कुछ था अगर कहने पे आते, दुनिया की इनायत है कि हम कुछ नहीं कहते। कुछ कहने पे तूफ़ान उठा लेती है दुनिया, कुछ कहने पे तूफ़ान उठा लेती है दुनिया। अब इस पे कयामत है कि हम कुछ नहीं कहते, हम कुछ नहीं कहते। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फूल के हार, फूल के गजरे, फूल के हार, फूल के गजरे, शाम फूलों की रात फूलों की, शाम फूलों की रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का। आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं, नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं। मिल रही है हयात फूलों की, मिल रही है हयात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। ये महकती हुई गजल मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम। जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की। पिछड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। अभ्यासाचा विषय कव्वाली. कव्वाली खरं पाहता सूफी प्रकारातील परमेश्वराच्या आराधनेसाठी वापरतात. जसं हिंदू धर्मात पूजा आराधनेसाठी भजन कीर्तन करतात. कव्वाली म्हणजे सूफी भजन कीर्तन आहे. सूफी संत मोईनुद्दीन चिश्ती यांनी भारतात वास्तव्य केल्यानंतर हिंदूंचं भजन कीर्तन पाहिलं आणि कुराणातील आयते दफावर म्हणण्याची प्रथा सुरू केली.
नंतर 13व्या शतकात सुफी कवी अमीर खुसरो यांनी समाजसोबतच याच्यात भर घालत कव्वाली तयार केली. कव्वालीत ईश्वर आणि गुरुला वंदन केलं जातं. गुरु आणि संगीत दोघांनाही आपण सारे परमेश्वर प्राप्तीचे सर्वात सशक्त माध्यम मानतो. ईश्वरच सुफी यांचा सर्वाधिक विश्वासपात्र आणि प्रिय असा प्रियकर आहे आणि त्याच्या प्रेमासाठी ते दरवेळी व्याकुळ झालेले असतात. सांसारिक प्रेमाला ते आपलं प्रेम म्हणजे परमात्म्याकडे जाण्याचा मार्ग आहे असं मानतात. हजरत निजामुद्दीन औलिया आणि अमीर खुसरो यांच्या कथनानुसार जोपर्यंत मनुष्य सांसारिक प्रेमाला योग्य पद्धतीने जाणून घेऊ शकत नाही तोपर्यंत तो आदर्श ईश्वरीय प्रेमापर्यंत पोहोचू शकत नाही. ते प्राप्त करणं तर दूरचीच गोष्ट. या जगात ईश्वराला प्राप्त करायचं असेल तर शेकडो उपाय करता येतात, पण प्रेम ही एकमात्र अशी गोष्ट आहे जी आपला अहंकार संपवून आपली ईश्वराशी भेट घडवून आणतो. आणि सूफिझम आपल्याला हेच शिकवतं. Qawwali, the Sufi prayers. It is a union of the soul with the Lord, the Almighty God, the Creator. We call I, the creation, as I am. The Qawwali is a reflection of explaining the I am I. The Qawwali, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, from Mughal Azam, is not just a melodious Qawwali but also a powerful poetic exchange that captures the nuance of love, destiny and rivalry. Let us dwell deeper into its artistic and cultural significance. This Qawwali is performed during a pivotal scene in Mughal Azam where the two female leads, Anarkali, Madhubala and Bahar Nigar Sultana, engaged in a lyrical duel. The song is a subtle confrontation where Bahar challenges Anarkali's position in the Princess Salim's heart, and Anarkali asserts the purity and depth of her love. Penned by Shakil Badiani, the lyrics are rich in Urdu poetry, blending themes of faith, kismat, love, mohabbat, and despair, gum. Each verse carries layers of meanings. तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे. An open challenge to destiny. It expresses the resilience of a lover who is willing to face any trial for love. मोहब्बत का अंजाम देखेंगे, मोहब्बत के मरहम देखेंगे reflects on the outcomes of love, whether it heals or wounds. It questions the very essence of love and its consequences. जहाँ जलते हैं अरमान वहाँ आकर हम भी देखेंगे. The imagery of burning desires, jalte hai arman, evokes the pain of unfulfilled love, showing the lover's resolve to endure even agony for their beloved. Composed by Naushad, the Qawwali features intricate vocal interplays and harmonies that enhance the poetic duel. The singers Lata Mangeshkar ji and Shamshad Begum ji bring the emotional intensity to life, creating a captivating contrast between the soft, hopeful tone of Anarkali and the assertive, challenging voice of Bahar. Cultural significance of the Qawwali. Symbolism of Qawwali. The Qawwali tradition in Indian cinema often represents a space of love, and this song is a perfect example of absolute pure love. It showcases the rich heritage of Urdu and the Persian poet forms within the cinematic framework. Themes of love and sacrifice. The song reflects the timeless theme of love as a journey fraught with trials, mirroring the broader narrative of Anarkali's love for Salim, which ultimately leads to her sacrifice. Philosophical insight. The lyrics also resonate on a universal level, portraying love as a battlefield where one must endure suffering and accept fate's verdict. It invites listeners to ponder questions like, can love transcend destiny? Is suffering a necessary part of genuine affection? How do pride and humility coexist in the realm of emotions? Emotions are energy into motion. This masterpiece remains one of the most iconic musical
and poetic moments in Indian cinema. Would you like me to analyze the personalities of Anarkali and Bahar as reflected in the lyrics or explore the deeper philosophical undertones? Here are the lyrics of the song Teri Mehfil Mein Kismat Aazma Kar Hum Bhi Dekhenge from the classic movie Mughal-e-Azam. तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, गर तुम्हें ना देखेंगे तो मरकर हम भी देखेंगे। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, गर तुम्हें ना देखेंगे तो मरकर हम भी देखेंगे। तुम्हारी महफिल में ले आए हम दिल का नगमा गम का, जिसे सुनकर जग रोया और गाकर हम भी देखेंगे। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। मोहब्बत का अंजाम देखेंगे, मोहब्बत के मरकम देखेंगे, जहाँ जलते हैं अरमा वहाँ आकर हम भी देखेंगे। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, गर तुम्हें ना देखेंगे तो मरकर हम भी देखेंगे। This song is a beautiful qawwali that portrays emotions of love, destiny and challenge with profound depth. Poetic quotes on the verses of the song. तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। तुम्हारी महफिल में आया है ये दिल बेखौफ, नसीब के हर फैसले का करेंगे सामना खुद हम। तुझ्या दरबारामध्ये आज मी प्रयत्न करते, काय होईल ते विधिलिखित, पाहू नशिबाचे खेळ। गर तुम्हें ना देखेंगे तो मरकर हम भी देखेंगे। जीवन की आस है बस तुम्हें देखना, वरना मौत में भी मोहब्बत का चेहरा देखेंगे। तुला पाहण्यासाठी आशा जिवंत ठेवते मला, नाहीतर मरणातही तुलाच शोधेन मी। गम के सुरों से सजाई है ये तान, तुम्हारे सामने आज है दिल की पहचान। दुःखाच्या सुरांनी बांधला गाण्याचा साज, तुझ्या पुढे उघडला हृदयाचा राज आज मी। मोहब्बत का अंजाम देखेंगे, मोहब्बत के मरहम देखेंगे, मोहब्बत के खेल में हर कदम आजमाएंगे। घावों के मरहम या ताज सब अपनाएंगे। प्रेमाच्या मार्गावर प्रत्येक चाचणी देऊ, जखमांचे औषध किंवा मुकुट सगळंच स्वीकारू, सगळं स्वीकारू। जहाँ जलते हैं अरमा वहाँ आकर हम भी देखेंगे। अरमानों की राख में भी है कोई कहानी, वहाँ चलेंगे जहाँ अधूरी है जवानी। स्वप्न जिथे जळून भस्म होतात, तिथे जाऊन आशेचे नवे अंकुर रुजवू. These poetic interpretations resonate with the profound emotions in the original song, reflecting love and determination and resilience. जिसे सुनकर जग रोया और गाकर हम भी देखेंगे. दर्द का गीत है जो हर दिल छू जाएगा. इस नगमे को गाकर हर आंसू बह जाएगा. दुःखाचं गाणं जे प्रत्येक मनाला भिडेल, हे गाताना अश्रूंचा दरिया वाहून जाईल, वाहून जाईल. मोहब्बत का अंजाम देखेंगे, मोहब्बत के मरहम देखेंगे. अगर प्यार का अंजाम दर्द भी होगा तो मरहम की उम्मीद भी साथ होगी. जर प्रेरणेचा शेवट दुःखातच असेल तर जखमीवर उपायही निश्चितच मिळेल. जाना है तुझ तक चाहे हो जितनी रुकावटें, राह में कांटे हो या धूप का साया, तुझसे मिलने का वादा कभी ना टूट पाया. रस्त्यात काटे असोत किंवा उन्हाचा प्रहार असो, तुला भेटण्याची शपथ कधी होणार नाही हार. मोहब्बत की राहों में जलते हैं अरमान, प्यार की राह में अरमान जब जलते हैं तो दिलों की कहानियाँ वही पलते हैं. प्रेमाच्या वाटेवर स्वप्न जेव्हा जळतात तेव्हा हृदयात नव्या गोष्टी रुजवतात. वफा के दर पर आकर इम्तिहान देंगे, वफा का ये सफ़र न रुकने पाएगा. हर इम्तिहान में दिल मजबूत रहेगा. निष्ठेच्या वाटेवर प्रवास थांबणार नाही. प्रत्येक परीक्षेत मन कधी डगमगणार नाही. दिल का ये नगमा दर्द भरा तुम्हारी महफिल में लाए है. दर्द से सजाया है इस दिल का तराना, तुम्हारे दर पर पेश किया है ये नजराना. दुःखाने सजवलेले हृदयाचं गाणं तुझ्या दरबारात दिले, ते अर्पण केले मी. जहाँ जलते हैं अरमा वहाँ आकर हम भी देखेंगे. जहाँ जलते हैं अरमा वहाँ आकर हम भी देखेंगे. जलते अरमानों के धुएं में छुपा कोई राज, वहाँ चलेंगे ढूंढने दिल का साज. स्वप्न जळून गेलेल्या राखेत आहे काही रहस्य,
तिथे पोहोचून उभं करू पुन्हा हृदयाचं वास्तव्य. These interpretations offer a deeper emotional resonance in both languages, carrying forward the essence of the song in a reflective and a poetic tone. A qawwali is a form of devotional music originating from the Sufi tradition, deeply rooted in expressing love for the divine and spiritual truth. It is performed with powerful vocals, rhythmic clapping, and often accompanied by harmonium and tabla. Qawwalis transcend linguistic and cultural barriers, aiming to connect listeners to a state of spiritual ecstasy that is Sufism. Qawwali is not just music, it is the sound of the soul yearning for the divine. Through Qawwali, the heart speaks what words cannot convey. कव्वाली सिर्फ संगीत नहीं, आत्मा की वो पुकार है जो परमात्मा तक पहुंचती है. कव्वाली में दिल वही कहता है जो शब्दों से बयां नहीं हो सकता. कव्वाली ही फक्त संगीत नसून आत्म्याची परमेश्वरासाठीची आर्त हाक आहे. कव्वालीत मन शब्दांनी सांगू न शकणाऱ्या गोष्टी व्यक्त करतात. तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नज़दीक आकर हम भी देखेंगे. घड़ी भर को तेरे नज़दीक आकर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे. तेरे महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे. तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे. बहारे आज पैगाम ए मोहब्बत लेके आई है, बड़ी मुद्दत में उम्मीदों की गलियाँ मुस्कुराई है. बहारे आज पैगाम ए मोहब्बत लेके आई है, बड़ी मुद्दत में उम्मीदों की कलियाँ मुस्कुराई है. गमे दिल से ज़रा दामन बचाकर हम भी देखेंगे, गम ए महफिल से ज़रा दामन बचाकर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे. अगर दिल गम से खाली हो तो जीने का मज़ा क्या है, न हो खून ए जिगर तो अश्क पीने का मज़ा क्या है. ना हो खून ए जिगर, हाँ हाँ ना हो खून ए जिगर तो अश्क पीने का मज़ा क्या है. मोहब्बत में ज़रा आंसू बहाकर हम भी देखेंगे, मोहब्बत में ज़रा आंसू बहाकर हम भी देखेंगे. तेरे महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे. मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुपके चुपके आह भरना घुट के मर जाना. तड़पना चुपके, जी हाँ चुपके, तड़पना चुपके आह भरना घुट के मर जाना. किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे. मोहब्बत हमने माना ज़िंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है. ये क्या कम है अजी हाँ, ये क्या कम है कि दुनिया याद करती है. किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे, किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे. तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे. घड़ी भर को तेरे नज़दीक आकर तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे.
3D Mind IMI, presented in English, Hindi and Marathi. Do listen on Radio Sugar 90.8 FM, Radio Sugar Android app and internet radio, Radio Garden, every day from 9 to 9:30 p.m. Also follow my Instagram handle shailaja.patil 3D Mind IMI. My originally created AI graphics and motivational quotes in English, Hindi and Marathi. Follow my YouTube channels 3D Mind IMI Motivation and Radio Sugar 90.8 FM YouTube. All videos uploaded new every day. Thank you very much. Thank you very much. Good night. Shubharatri. Shabba Khair.